the first question, see, actually, I'm from the mechanical background, so definitely I was expecting that question. Why you are there in IT? Okay, Mhm. so I prepared very well for that question. So as I said, freshers should have the prepared aptitude, then projects, then aptitude, and group discussion, and mock interview. The fake experience and all these things, you should not provide any such kind of things. मैं मेरे तरफ से ऐड करता हूँ। अब मैं योगेश को जानता हूँ, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है वो। तो मतलब मैं उसके सक्सेस के बारे में आई वॉज श्योर, तो मैं इसके बारे में Okay. श्योर था कि इसका प्लेसमेंट हो या ना हो, ये कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। ये अपने को पता चल जाता है अपने आजू बाजू के लोगों को लेके। मतलब योगेश बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेटेड था। जो लोगों को लगता है ना हार्ड वर्क डेडिकेशन का क्या फायदा होता है, आई गेस हम लोगों को हैबिट लग जाती है मेहनत से और सिंसियरिटी से काम Correct. करना। और Mhm. वो आदत अच्छी है, बहुत अच्छी आदत है कि वो हर लाइफ में हर एस्पेक्ट में आपको फायदा देती है। तो हुएवर इज थिंकिंग कि मैं इंजीनियरिंग के 4 साल ऐसे ही ढकेल के पास कर लूंगा, ऐसा मत करो। इट्स लाइक हैबिट बिल्डिंग So, प्रोसेस। ये 4 साल है वो, राइट? लोग बोलते हैं 21 दिन में आपकी आदतें बदल जाती है। तो अगर आप 4 साल अच्छी आदतें लगाओगे तो डेफिनेटली 21 दिन से तो बेटर इफेक्ट आएगा। सो दैट वाज वन हम्म, थिंग दैट आई टॉक्ट अबाउट। तो बाकी योगेश ने अच्छी चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें कवर की। अभी मुझे एक्चुअली टूल यूज करने थे, तो सेलिनियम टूल मुझे पता था। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है टेस्टिंग में, तो वो बोलते रहते। तो इसमें हम्म, अलग अलग टूल कौन से है, डिमांड कौन सी है, क्योंकि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर देखे, मतलब कुछ बड़े बड़े कंपनीज के, उनके ऐसा है कि वो स्पेसिफिक टूल पे डिपेंड है। तो अभी कौन से टूल के लिए mhm. डिमांड है, और कौन सा अलग अलग टूल है, सो दैट व्यूअर्स को पता चले कि अगर कोई टेस्टिंग में है तो उसने उस पर फोकस करना चाहिए। करेक्ट। या सबसे मेन क्या है कि आपको जो टूल यूज करना है उसके लिए कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए सबसे मेन। सो जावा इज गुड। ओके, तो जावा प्रिपेयर कर सकते हैं वो लोग मोस्टली। जावा है, पाइथन है, अदर डिफरेंट सी शार्प, अदर लैंग्वेज, बट मोस्टली जावा यूज करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री। रीजन behind that, lot of the dependency applications are developed on the Java also. It's good to learn because not any language is developed, but its parent language or originator is a Java. So what you हम्म, can do, you can prepare for one of the language called as Java, then tool. As you said, okay, Selenium. Selenium is widely used because it's kind of a free tool, okay, freeware tool. yeah, It's kind of plugin. Libraries are available, so you can use this tool for web application, okay. But okay. if you want to test in mobile application, okay, हम्म। because everyone in India, we can say around 80 to 90% people, okay, have the mobile. But if you buy the new mobile, but your mobile is not working, then what you'll do? ओके। हम्म, You'll throw out your mobile, right? Right. यस। हम्म, If it is not working, but mobile testing also important, right? Web हम्म। is not working, then at least we keep some stations. But if mobile is not working, then it's not possible, right? So हम्म, in that case, okay, what we have to also focus on the mobile application testing. So mobile application testing, what we have to do, it's a similar kind of Selenium, but tool is different, called as APM, ओके। APPIUM. Okay, APM ओके। tool is used for there, but you should have to code in the Java itself. ओके। APM what will do? APM just bridge the gap between mobile and your Java. Okay, ओके। Selenium what will do? Selenium is web browser with Java. So just ओके। bridging the gap between those ओके। two things. Okay, this is the one thing. Now, let's move for the another perspective of testing, performance testing. We can say, okay, ओके। you are trying to access one of the application and it's very slow. Then one thing is came into mind. We can say something regarding that product owner. Okay, हम कभी कभी ऐसे इतना मतलब गालियां भी देते हैं उनको कि क्या बकवास चीज बनाई है कंपनी में, राइट? ऐसा होता है बहुत बार। अगर आप कोई yeah, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और वर्क वर्क नहीं कर रहा है, तो राइट। आजकल अगर देखोगे कि पेशेंस किसी के पास भी नहीं है, राइट? हम्म, अपने पास भी नहीं है। अगर हम देखते हैं कि थोड़ा डिस्करेज हुआ तो हमारे पास हम्म। पेशेंस नहीं रहते, राइट? इट्स हैबिट, एज यू सेड, ओके, इट्स काइंड ऑफ हैबिट बन जाती है। क्योंकि अगर 10 साल पहले अगर आप देखोगे, जैसे हमने देखा कि 10 साल पहले हम क्या करते थे, अगर ये सादा हम्म। बटन वाला मोबाइल यूज करते थे, कॉल लगाते काम खत्म। उस टाइम हम्म। हमारा कॉलिंग कनेक्शन का भी टाइम ज्यादा था। उस टाइम हम्म। हमारे पास बहुत पेशेंस थे, अगर कॉल भी नहीं लग गया तो हम उनके घर जाते थे, राइट? बट अब ऐसा नहीं है। अब वो इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड को वो पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो हम्म। सिमिलरली परफॉर्मेंस दैट वी आर टॉकिंग, ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग. For example, I will just discuss about one example that we faced, Tushar. I think one day we are checking university result, right? That time that site was down. Okay, ओके। हमने हाँ। यूनिवर्सिटी को भी गालियां दे दी थी उस टाइम. it was always down. Result Correct, ever correct. down. University result. But what happened really behind that? Okay,
See, because there is a load is too much. We can expect around 50,000, 1 lakh, 2 lakh users. Okay, university or any other organization should consider this point. Okay, means they just don't provide the live result and that's it. But because same request at a time, one of the means 1 lakh, 2 lakh requests are going to that server. Okay, Mm. practically if you see, lot of the peoples are accessing same resource that should be tested properly and then you can provide it. Okay, sometimes mpc results also. Okay, anything, any site. Okay, they Mm. also, and they also aware on that. Okay, but they are improving little bit. Okay, so coming to the performance testing, in performance testing में क्या करना पड़ता है, वर्चुअल यूजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं. ओके, मान लो Okay. कि कोई अकॉर्डिंग टू दिस यूजर्स. ओके, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी हैज a lot of the users. Okay, at a Mm. time people are accessing same url, same thing, search destination, date, time, search the result. But if you see the failures in the top organization, it's very less. Okay, Right. it's very minor. Okay, failures is very minor, but they have some downtime. If you heard about this application won't be available in the particular time slot, right? Right. The reason Yes. behind that, during that particular time slot they are testing their applications. Okay. Okay, so in that particular time slot, performance is testing, what we can say, they are performing, creating virtual users. Okay, like 10,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakh user they will perform. So there is a different tool called a jmeter. Okay. So Okay. Okay. jmeter is tool used for the performance testing. So they will just create the users or hit the same request and let's see the performance. Okay. So this is the one type of testing. Performance testing also good career in IT industry. You can avail this good opportunity for performance testing. Now coming to the another point, which is a very interesting called as security testing. Okay. If you see Yeah. hacking, all everyone aware about this hacking and all these things. Okay, but Okay. but no one is caring about that, right? Which at least awareness. If you remember 10, 20 years back, okay, like people are keeping their money, their wealth in proper, Mm. what we can say, under the security, we can say, or Mm. in bank or in home. But today everyone has mobile is a wealth, Mm. right? In mobile Right. itself, you have your Mm. jewelries, everything, money, your wealth, everything. Mm. If you imagine if our security is gone, then we don't know who is the robber, right? But 10 to 20 years, we know the robber, right? But right now, it's very difficult to find that robber also. Okay. So Yes. we have to consider that security testing. So security testing, we are talking about, this is one type of testing, software testing. It's a good career opportunity for security testing also. So in Mm. security testing, what we are doing, okay, any banking application, okay, Mm. it's secured for end user or not. Okay, that's Okay. this perspective. Every banking or any insurance, any company, we have to save that application from the hackers. Okay, so this is also good opportunity for the team. So we have lot of the database security, a lot of the applications, a lot of the tools are there and the security testing also. So these are the different ways of testing that we covered. One is functional, then another one is what we say performance Performance. testing, security testing. So these are the different things that uh, students can avail such type of good career opportunity. तो अभी आपने जो भी बताया, जो भी सिक्योरिटी में यूज होता है या फिर जो भी बाकी Hmm. एग्जांपल्स थे, इससे मुझे आइडिया आ रहा है कि कितना Hmm. बड़ा स्कोप है टेस्टिंग के Okay. लिए. Right, मतलब right. इट्स Yes. मतलब इररिप्लेसेबल है, इसको कोई रिप्लेस Mm. नहीं कर ही नहीं सकता है ये, Mm. है ना? या इसके रिगार्डिंग मैं एक स्मॉल चीज बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने ज्वाइन किया था एज ए टेस्टिंग टीम, उस टाइम Mm. लोग मुझे पूछे थे यार टेस्टिंग में क्या स्कोप है. अरे भाई Mm. टेस्टिंग में क्या स्कोप है, अब उनको पता चल रहा है जब उनका मोबाइल खुद का हैंग हो गया, मतलब हैक किया किसी ने, तब उनको पता चले कि अरे भाई टेस्टिंग में बहुत स्कोप है. टेस्टिंग में Yes. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट अपने को इससे अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए. का Mm. जो टेस्टिंग है ना, वो उसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा सारा Mm. राइट. एप्लीकेशन, Yes. है ना? अगर राइट, आपका राइट, टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो उसका कोई यूज ही नहीं है, मतलब राइट, Mm. राइट, हमारे एब्सोल्युटली पैसे राइट. कोई भी लेके जा सकता है विदाउट एनी ट्राई. करेक्ट. सुंदर. और ये जो है स्किल टेस्टिंग में, और बोलिए. एक स्मॉल चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम कोई एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं तो एक काइंड ऑफ हम्म, स्किल है. जैसे अपना एक हम्म, किसी का कम्युनिकेशन स्किल है या कोई भी Mm. अदर स्किल है. ओके, Mm. या टीचिंग स्किल है, डिफरेंट स्किल्स रहते हैं, उसके साथ साथ टेस्टिंग जैसे काइंड ऑफ स्किल भी है. मतलब एक्सपीरियंस से आप इम्प्रूव कर सकते हो उसमें. सो लॉट ऑफ द थिंग्स आर इन्वॉल्व देयर. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रेशर, योर वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. आफ्टर 10 years your way of working is different definitely. So similarly in testing also, as an experienced tester and as a fresher, there is a lot of the things you have to consider. हम्म. So it's kind of experience also.
ओके, इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपने कई सारे लैंग्वेजेस का भी जिक्र किया था, जैसे कि जावा है, पाइथन है। पाइथन तो है, यस, आपने बी, वैसे सी शार्प। बता दिया था कि जावा में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। हम्म। तो ओके। आपके हिसाब से फ्यूचर किस लैंग्वेज में ज्यादा है स्कोप, तो मैं जानना चाहता हूँ ये टेस्ट। करेक्ट। सो जावा क्या करते हैं, देखिए नए नए अगर थिंग्स आते हैं, पहले मोबाइल नहीं था, ओनली हम्म डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशंस थे। जैसे मोबाइल आया तो जावा ने भी खुद में इम्प्रूवमेंट किया। तो वो लैंग्वेज ओके। क्या करते हैं, खुद में इम्प्रूव हो जाती है। ऐसा नहीं कि हाँ। उन्होंने एक बार रिलीज कर दिया वो स्टॉप ही बैठे ऐसे देख रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है इंडस्ट्री, वैसे नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, खुद में नए नए रिलीजेस लेके आते हैं, नए फीचर्स लेके आते हैं। तो अगर वही सेम हम फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ भी आगे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज बेस्ट रहेगा। अलॉन्ग विथ अगर हम्म जावा आ रही है तो बाकी लैंग्वेज आप डेफिनेटली सीख पाओगे, उसमें कोई हम्म, इशू नहीं। तो आई कैन सजेस्ट टू लर्न विद जावा डेफिनेटली। ओके। ओके। तो सर। सो अभी जनरली एक पर्सपेक्टिव होता है, जैसे योगेश ने बोला, राइट, हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग में क्या डिमांड है। और जनरली हम लोगों का पर्सपेक्टिव, जनरल लोगों का ऐसा होता है ना कि किसी चीज में कोई डिमांड ही नहीं है, हर खत्म हो गया है, हर जगह ले ऑफ है। करेक्ट तो करेक्ट। आपने जिस तरीके यूनिवर्सल से है। बोला, राइट, टेस्टिंग का, तो आई फील एवरी लोगों ने देखना चाहिए कि टेस्टिंग करेक्ट कितनी देखना चाहिए इंपॉर्टेंट है। पहले। जैसे आपने सिक्योरिटी एनालिस्ट का बोला, और ये तो आगे चीजें राइट और बढ़ने वाली है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन राइट और ये सब। एब्सोल्यूट। कुछ दिन ऐसा आ जाएगा, आई फील, मुझे लगता नहीं कैश कोई, क्योंकि अभी भी हम लोग कोई कैश, अभी हम लोग वॉलेट में पैसे नहीं रखते। सो वी आर राइट यूजिंग राइट गूगल पे एंड मेरा ऑल दोज, राइट। सो वी आर एट दैट पॉइंट। सो जो लोग बोल रहे हैं ना इसकी डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, तो आई फील उन्होंने सचमुच रियलिटी चेक करना चाहिए, रादर देन यूट्यूब के वीडियो और कोरा पे डाल एब्सोल्युटली। के कि डेवलपर की सैलरी इतनी है तो मुझे डेवलपर का ही जॉब चाहिए। चीजें ऐसी वर्कआउट नहीं होती, राइट। आपको आपका करेक्ट खुद करेक्ट। का एक्यूमेंट भी उतना चाहिए स्किल लेवल का, और सबकी स्किल सेम नहीं होती। कुछ राइट। की, कुछ लोगों की एनालाइजिंग स्किल अच्छी होगी, कुछ लोगों की एग्जीक्यूशन स्किल अच्छी होगी, कुछ लोगों की कोड डेवलपमेंट स्किल अच्छी होगी। तो करेक्ट करेक्ट। अगर आप आईटी में भी हो ना, आई फील यू नीड टू एनालाइज इट। अपने पे खुद पे प्रेशर मत डालो कि डेवलपर की सैलरी बेस्ट है तो मैं डेवलपर ही करूंगा। मुझे तो हम्म ये मतलब अप्रोच ऐसा लगता है जो अब आजकल सभी लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे डेवलपर बनना है, क्यों बनना है, सैलरी। तो कुछ सोच ही नहीं दैट्स रहे उसके बारे में। मतलब यू नीड अरे टू या थिंक अबाउट इट। करेक्ट। सो मैं इधर बता सकता हूँ एक और स्मॉल एग्जांपल। मेरे टीम में एक सीनियर डेवलपर था, बट उस दिन हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे टीम में कि चलो ठीक है कुछ तो नया फाइंड कर लेते, जो कि डेवलपर को इधर खुद बैठ के ही सॉल्व करना पड़ेगा इशू, डिफेक्ट फिक्स करना पड़ेगा। तो हम ऐसे चैलेंज देते थे कि तुम लोग दो डिफेक्ट ऐसे फाइंड करो कि अभी तक किसी ने फाइंड नहीं किया उसे टाइम पे। ठीक है। तो उससे हमने एक दिन ऐसा किया, वो डेवलपर को इतना परेशान करके डाला। ठीक है। वीकेंड पे उनको काम करना पड़ा, फिर हमें को भी पता चला सच में टेस्टिंग में मजा है। ठीक है। वो खुद को मतलब ऐसा समझते कि चलो ठीक है मुझे सब कुछ आता है। ऐसे अगर तुम डिबेट निकालोगे तो बहुत मजा आता है, और डेवलपर को भी सच में पता चलता है कि सी गुड गुड टेस्टर कब होता है या गुड डेवलपर कब होता है, जब टेस्टर डेवलपर के अच्छे अच्छे डिफेक्ट निकालता है तब पता चलता है कि सच में डेवलपर की मतलब क्वालिटीज कैसी है। ठीक है। हम्म डेवलपर को अप्रिशिएट मैनेजर नहीं करेगा, टेस्टर करेंगे, राइट। अगर सही से डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन तो ही पता चलेगा कि सच में एक सही डेवलपर है या नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरा एक स्मॉल चीज है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में किसी दूसरे की गलती निकालने का मतलब शौक रहता है हर हर एक सबको, राइट। मतलब ये नेचुरल है। तो टेस्टिंग में सेम प्रिंसिपल है। टेस्टिंग में सेम वाह, प्रिंसिपल, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है। आप वो बहुत यूज बढ़िया। करो, किसी की गलतियां निकालो, काम खत्म। और ये अच्छा इट्स है, बेसिक आपको प्रिंसिपल। आपको गलती निकालने के पैसे मिल रहे, दैट इज या दैट इज अनदर। करेक्ट कैसे। और इसके अलावा आप खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना, मतलब आपके भी कुछ गलती हो रही है तो आप साइड बाय साइड पैरेलल बैकग्राउंड इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। बट डेवलपर की गलती हो तो पब्लिश हो जाती है, दिस इज द डिफेक्ट, सबको पता चलता है उनकी गलती। सो ये हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि मुझे वर्क करना है, काम करना है, उसके अलावा बाकी चीजें भी करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब आपका इंटरेस्ट, तो मेरा पहले से इंटरेस्ट था कि किसी की गलती निकालो। ओके, बहुत मजा आता था। कॉलेज में भी किसी का अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल है मैथ्स का, वो गलत हो गया तो मैं पहले बताता कि इसका गलत हो गया, चाहे मेरा भी गलत हो सकता है, बट ये थोड़ा एक तभी नेचुरल से टेंडेंसी रहती है। शायद ठीक तभी से है। आपका जो टेस्टिंग का स्किल करेक्ट। है वही से डेवलप हो हाँ राइट गया। एब्सोल्युटली। तो ऐसे कोई चीज होती, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोडिंग का मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं डेवलपर, अच्छा डेवलपर उस टाइम तो नहीं बन सकता था क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है अपने पास कुछ स्ट्रेंथ है तो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि थोड़ा पेशेंस और वो चीजें के बाद पता चल गई ठीक है हम सही रास्ते पे हैं। तो दैट्स इट। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता था, अगला सवाल मेरा है जो एक्चुअली जो कंसिडर किया जाता है आजकल के जमाने में, दैट इज सैलरी। जबकि आप जानते हैं कि मतलब तुषार, मैं भी जानते हैं कि इट इज नॉट अ
मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट स्टिल एक अगर आइडिया होगा किसी बंदे को कि ओके इतना इसमें मैं कमा सकता हूँ, ठीक है, तो दिस इज ओके फॉर माय करियर, तो उस चीज के लिए हम्म, आप एक सैलरी रेंज आप बता दीजिए, फ्रेशर्स के लिए कितना हो सकता है और एक्सपीरियंस के लिए कितना हो सकता है, Okay, दैट केस। first, let's talk about the fresher. Okay, any graduate, at least they are expecting, as per their expectation, like expenses and all these things, they can expect around 4 lakhs per annum. So 3 to 4, 5 minimum. Three, at least we can set minimum. Okay, around 3 lakhs per annum. But for experience, it varies from their skills as well as experience. But we can say if experience has 3 years, 4 years experience, and they should have good qualities of their brand. Their tools and skills. So that a person can expect more than 10 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs. ओके। If experience is 7 years, 7 plus, they can expect around 15, 13, 14, 15. It's depend on industry, skill set, everything. So skills is important. Salary मिल जाती है बहुत सारी। अगर आपने कभी ऐसा देखा होगा कोई न्यूज में कि किसी ने तो मतलब गूगल का एक बग निकाला या फेसबुक का कोई डिफेक्ट निकाला तो उनको 2 करोड़ मिल गए। तो ऐसे भी टेस्टर है आजकल। अगर एक बार भी किसी ने ऐसा काम किया तो बस लाइफ है उनकी, कोई टेंशन नहीं है प्राइवेट में जॉब करने की। उसमें वो शेयर मार्केट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एफडी या कोई अदर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे भी टेस्टर है अपने पास। अगर आप किसी बड़ी कंपनी का छोटी सी भी गलती निकालोगे तो आपका करियर सेट है। तो राइट। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से। बट एक राइट। जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और मतलब सिटी में रहना है, बाकी खर्च वगैरह सब कंसिडर कर लेते हैं तो एज एक्सपीरियंस 5 to 6 years दे कैन एक्सपेक्ट 13, 12 मींस मोर देन 10 lakhs यू कैन से। या नहीं, काफी अच्छी सैलरी है, पर अभी वापस सब लोगों को एक्सपेंसेस मैनेज, मुझे लगता है लोगों ने एक्सपेंसेस मैनेज करने पहले सीखना चाहिए, डिजायर्स कम करने चाहिए, जो भी अनरियलिस्टिक मटेरियल राइट डिजायर्स है, राइट। आई गेस राइट। प्रॉब्लम वो है, लोग तो पहले 10,000 में भी खुश थे और 2-3 हजार करेक्ट। सेविंग रखते रहती थी। अभी तो लोग सेविंग, बड़ी बड़ी सेविंग हो रही है, 50,000, 1 लाख, स्टिल लोग बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों पे कांस्टेंट राइट। प्रेशर है। जैसे अब योगेश अपने लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव है, पर अगर आप जनरल टेस्टर से कोई बात करोगे तो वो क्रिप करेगा, वो बोलेगा नहीं डेवलपर का जॉब अच्छा है, उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बट दैट्स द रीजन योगेश को पॉडकास्ट पे लाने का रीजन भी ये था। आई वॉन्ट सम पॉजिटिव पीपल जिनको लगता है उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की है, सो दैट उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। नहीं तो लोग सिर्फ क्रिप ही करते रहते हैं लाइफ में, लोगों को दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सो अच्छा लगा, मतलब योगेश आपकी स्टोरी, आपका अलग पर्सपेक्टिव सुन के। तो मैंने आपका स्ट्रगल तो देखा थैंक्स था, तुषार। तो आई फील एक अपने अच्छी आउटलुक दी, मतलब मुझे और नीरज को बहुत सारे, तो मुझे खुद को ही नहीं पता था ये हाँ। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये डाउन टाइम, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सब चीजें होती है। और अभी मैं सोच रहा हूँ, जैसे नीरज बोला, राइट, खतरनाक स्कोप है ये सब चीजों में। स्कोप सो वाइज मतलब जिसको भी आइडिया, क्योंकि हाँ, तो मतलब ये सोचना चाहिए सब लोगों ने, मतलब सीरियसली वैसे, और खुद को एनालाइज भी कर लेना चाहिए कि हम लोग कैसे, अपने को कौन सा प्रोफाइल अच्छा लगेगा। तो सब लोग एक काम कर रहे हैं तो मतलब वही, जैसे अब सब लोग एमपीएससी कर रहे हैं तो एमपीएससी करना इज नॉट ऑप्शन। आप लोगों को पता चलना चाहिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की अक्यूमेन है या नहीं, और प्रेशर हैंडल हो सकता है क्या, टेक्निक, ये सब चीजें पता करके हम लोगों ने डोमेन में जाना चाहिए। कोई डोमेन टेस्टिंग भी खराब नहीं है, या कुछ आईटी एनालिस्ट की भी जॉब होती है ना, उसमें जितना ज्यादा आईटी का नहीं होता, सिर्फ आपको स्मॉल स्क्रिप्ट रन करना है और कुछ प्रोसेस करनी होती है। इवन दैट इज नॉट बैड अगर आप उसको अच्छे से ऑटोमेशन से करो। या मुझे एक सवाल था, ओके। ये मतलब आप, या एक ऑटोमेशन है और एक मैनुअल टेस्टिंग है, राइट। तो या पहले ओके। मैनुअल टेस्टिंग के जॉब अच्छे थे 2015 में, क्योंकि मैं तभी से ऑब्जर्व कर रहा था। अभी खतरनाक डिक्लाइन आ गया है उसमें, अभी हम राइट। लोग कर रहे हैं, तो उसके रीजन क्या थे? और मतलब अगर कोई अभी मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है तो आप मतलब रियलिटी बता देना कि आगे क्या हो सकता है, लोगों को और थोड़ा ओके। से मैं आई ओपनर होना चाहिए लोगों के लिए। करेक्ट मैं करेक्ट। कुछ ऐड गुड करना चाहूँ। क्वेश्चन। अ, राइट राइट तो यस। अभी एआई का हम्म भी जो है, एआई का भी काफी मार्केट आ रहा है, हम्म तो विल इट अफेक्ट द मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दैट यू टॉकिंग अबाउट? हम्म तो वो एक बता हम्म ओके। दीजिए एआई का इफेक्ट। Yeah, sure. So yeah, first we'll go first on the manual testing. Okay, initially we don't know about the automation. Okay, long back, around 20 years, 15 years back. Okay, so manually we are doing these things, creating all data in Excel. That time tools was not available. Before that, we are maintaining our data in register, notebook and pen, pencil. वो जमाना अलग था।
उस टाइम कुछ भी डॉक्यूमेंट मतलब कंप्यूटर ही नहीं था, ठीक है। अगर रहता था भी वो इतना ज्यादा पता नहीं था कि यूज कैसे करना है, और इतना अवेयरनेस नहीं था इनिशियल डेज में। बट आजकल अगर आप देखोगे कोई भी ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट, एवरीथिंग इज शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड, ओके, और द कंप्यूटर। बट अगर थोड़ा बैक जाओगे तो देखोगे, कल एक ऐसा मैंने न्यूज देखी थी, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। कुछ ऑफिस में क्या हुआ था कि उनका कुछ 10 साल पुराना फाइल नहीं मिल रहा था, ठीक है। उनका कुछ फाइल था कि वो ट्रांसफर ऑर्डर्स थे उस फाइल में, वो फाइल ही नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। अपने रीजन में है, पुणे डिवीजन में ही चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। रीजन क्या है कि कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो डेटा कंप्यूटर पे रहता है, क्लाउड पे रहता है, तो कोई भी कहाँ से भी रिट्राइव कर सकता था, ठीक है। तो अपने वो है थोड़ा पर्सपेक्टिव, मतलब आईटी का। नाउ मैनुअल टेस्टिंग का, फॉर श्योर वी हैव टू मूव टू द ऑटोमेशन टेस्टिंग, दिस इज फर्स्ट डेफिनेटली। जो भी अभी मैनुअल टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं वो डे बाय डे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस पता है। उनको सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा ऑटोमेशन टूल सीखना है। मतलब as compared to other testers, they have good idea how testing is happening, right? Manual testing, they know process and everything. They just to move for the automation. But now, who are there right now working on the automation? They can learn AI, because next step is artificial intelligence. Means script also will how to automate writing the script, right? Initially, what we did, we are manually writing, means manually testing. Then what we did, we are scripting that code. Now, अभी क्या हो रहा है, जो हम ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, उसका भी ऑटोमेशन आ रहा है। मतलब आपको स्क्रिप्ट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज अगर कोई अदर बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई लेजी पर्सन आ रहा है, उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो सब सॉफ्टवेयर वाले अगर लेके आएंगे तो फिर क्या होगा। तो वो लेजी पर्सन के लिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली मतलब स्क्रिप्ट भी हो रही है। तो ऐसे मतलब नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो जो ऑटोमेशन का भी काम कर रहा है वो उन्होंने थोड़ा आगे जाना चाहिए, जो मैनुअल पे है उन्होंने ऑटोमेट पे जाना चाहिए। जो एआई यूज कर रहे हैं उन्होंने एआई के मशीन लर्निंग अदर टूल्स सीखना चाहिए, चैट जीपीटी आ रहा है। तो ऐसे मतलब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। तो एआई की वजह से ये जॉब में कोई मतलब थ्रेट नहीं है, मैं कह सकता हूँ। या अभी तो नहीं है, बट फॉर श्योर वी हैव टू कीप वॉच ऑन दैट, बिकॉज व्हाट विल हैपन, सी sometimes what happen, industry is thinking on the next level, right? Whatever we are thinking, but industry is thinking next level as compared to us, okay. So we have to keep watch on that. नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, वो थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो अवेयरनेस होना चाहिए अपने को। नहीं तो पूरा ब्लाइंडली हो तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो चीजें कर सकते हैं हम एज ऑफ नाउ। So I suggest to everyone, okay, if they wants to start their career in the IT or in the testing, so they should learn new technologies. Otherwise, means आप थोड़ा पीछे रह जाओगे। आगे जाना है तो थोड़ा कुछ तो नया सीखना चाहिए। इसमें मुझे एक्चुअली एक पॉइंट ऐड करना था। जैसे अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज तो बोल रही है मतलब वो डेवलपर्स को कि यूज आई चैट जीपीटी, राइट। तो लोग चैट जीपीटी क्योंकि डायरेक्टली स्क्रिप्ट मिल रही है, क्योंकि उसके पास डेटा है। तो अपने को अगर एक अच्छा डेवलपर होगा उसको पता चलेगा ना उसमें से क्या एडिटिंग करना है, करेक्ट, क्या राइट। फंक्शन करने हैं, अगर पॉइंटर चेंज करने हैं, क्लास के फंक्शंस के नेम चेंज करने हैं, तो वो सब ये चीजें कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो टेस्टिंग का काम है, राइट, जिसमें मैन्युअल इंटरविनेशन होता है या कुछ होता है, शायद वो चीजें कुछ ऐसी हो जिसके लिए एआई आई डोंट थिंक इस मूवमेंट में कुछ कर पाएगा। पर डेवलपर की जो जॉब है, राइट, अगर आप अच्छे डेवलपर नहीं हो ना, आपकी जॉब इज इन वेरी मच यूज डेंजर। मतलब मेरा एक दोस्त है आईआईटी से, राइट, उस उनकी टीम में के यूएस की टीम दे उन्होंने पूरी फायर कर दी उधर से। और क्योंकि अभी वो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी डायरेक्टली पूरा उधर एक रखा है यूएस में, और इधर पूरी की इंडिया टीम रखी है एक्सपेंसेस के हिसाब से। सो थ्रेट तो है, बट आई फील थ्रेट उन लोगों को है ना जो अडेप्ट नहीं ठीक से करते और वो परफॉर्मेंस नहीं देते। तो वो भी चीजें देखनी चाहिए। यू शुड, जैसे योगेश ने सही कहा, यू शुड कीप आई ऑन इट कि चीजें किधर जा रही है, नीड टू अडॉप्ट इट अकॉर्डिंगली। ये जनरली ये फाइनल पे मैसेज का जो सेक्शन होता है, राइट, ये ऐसा सेक्शन है जो मुझे और नीरज को बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग बहुत सामने वाले से सीखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे हमने रोहित की लास्ट टाइम स्टोरी शेयर की, जो उस बैकग्राउंड से आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला उसके स्टोरी के लिए। लोगों को स्टोरी पसंद है। तो आपका फाइनल मैसेज क्या होगा एस्पिरेंट्स के लिए, या जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, सो वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाए लाइफ के लिए। करेक्ट। सो आप दे सकते या वो मैसेज हम ये सिंपल में एक मैसेज दे सकता हूँ कि जो आप कर रहे हैं कुछ भी चीज है, जैसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं, वो अगर हम पूरा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हैं कोई भी चीज, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, सक्सेसफुल। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो जैसे तुषार ने इनिशियली में बताया कि कॉलेज के बारे में, अगर मैं उस टाइम से ही सोचता था कि कॉलेज अच्छे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो अभी भी मैं सच में आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ।
कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम बी पॉजिटिव होना चाहिए कुछ भी चीज के हिसाब से। सिर्फ पॉजिटिव होके नहीं हो फायदा, ठीक है? सब लोग पॉजिटिव रहते हैं तो उस पर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है? कि डिफरेंट रास्ते आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें क्या फायदा है, कैसे आगे जा पाओगे, वो भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा बट मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो पाएगा, अभी भी मैं से बोलूंगा कि मुझे ऐसा करना है, बट उस पर रियल में वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है? हम्म सबसे मेन चीज है कि आप उस पे वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे, वो एक थोड़ा एस्पेक्ट है। और दूसरी चीज, ठीक है, आप ये करियर कर रहे हो तो उसके अलावा अगर आपको दूसरी चीज भी करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसा रहता है जॉब करते करते कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या कोई बिजनेस है, तो आप, मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि जॉब के रिलेवेंट ही आप कुछ तो करो। ऐसा नहीं कि पूरा अगर डिफरेंटली फील करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि पूरा दो चीज, अगर दोनों चीजें पूरे डिफरेंट होगी तो आपका फोकस कम हो जाएगा, ठीक है? हम्म अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आईटी कंपनी स्टार्ट कर दो, और दूसरी चीज स्टार्ट करोगे तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज हम्म दोस थिंग एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन योर जॉब, ओके? कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी कैसा है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो तो आपका बी प्लान होना चाहिए, तो मैं ये हम्म बोलता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपकी बी होनी चाहिए, जो करियर कर रहे हैं वो ये होना चाहिए। इसका रीजन क्या है देखो, मतलब मैंने इस पे बहुत एनालिसिस किया, फिर ये स्टेटमेंट का आया। क्या हो रहा है हम्म जनरली, हम ऐसे इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है, तो मतलब हम्म आपका एज अगर देखोगे तो अराउंड 25 अब वही हो जाता है तब तक, और फिर आप आपका ये प्लान तब डिसाइड करोगे, मीन्स इट्स टू लैगिंग, राइट? 25 पे हम्म आप डिसाइड कर रहे हो फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे बेटर क्या है कि अगर मार्केट देखोगे तो कॉम्पिटेटिव हम्म एग्जाम का भी मैं मतलब बहुत अच्छा उसका स्टडी किया है, उसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मुझे भी, उस लेवल तक जाके भी मैं आया हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि आगे नहीं गया तो वापस ही आया हूँ ठीक है? उसका हम्म मैंने बहुत एनालिसिस भी किया है, तो ये बोल सकते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपका बी प्लान रेडी होना चाहिए, तो बी हम्म प्लान ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ही बी कर दो, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज है बाकी कुछ चीजों देखोगे तो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप बहुत स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम आपका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, बट अगर आपको अभी पता चल रहा है कि नहीं मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम करना है, तो उस टाइम हम्म अगर आप पूरा जो कर रहे हैं को दो, उसके एक्स्ट्रा आपके पास स्किल है तो आप दूसरे ऑप्शन देख सकते हम्म हो। मेरा लास्ट मैसेज है व्यूअर्स को, इसके अलावा भी जैसे मैंने हाईलाइट किया कि दूसरे की थोड़ा गलती निकालने का थोड़ा ट्राई करो, आपको इधर हाइक भी मिलेगी, सब कुछ चीजें मिल जाएगी, हम्म और एक प्रोफेशन बन जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे मतलब कई बार बैठे अगर गलतियां निकल लोग हम्म मारेंगे आपको, तो थोड़ा प्रोफेशनल में जाओ, हम्म फिर गलतियां निकालो, तो आपको बढ़िया रहेगा, करियर एंड ऑल दिस थिंग्स। ये ये मेरा लास्ट बहुत मैसेज रहेगा। बढ़िया नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज था। दो चीज मुझे वापस पसंद आई इसमें से। तो आपने सबसे फर्स्ट बोला कि बस पॉजिटिव मत रहो, एक्शन लो। जैसे हम्म लॉ ऑफ, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है, राइट? फेमस बुक है, शायद राइट, लोगों को आई गुस्सा आएगा। आई नो दैट, और यस। इसमें ऐसी सब चीजें बोली है जो मुझे और नीरज को पहले से वी डोंट फॉलो इट, कि सब हम्म सोचो हो करेक्ट। जाएगा। मुझे नेकलेस का मैं सोच रहा हूँ रात को सोने से पहले, और मैं सुबह उठ रहा हूँ आज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जब तक आप एक्शन कर सकते हो, राइट? एक्शन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, बट उसके साथ काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करोगे, खाली जगह पे बैठोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा। दूसरा, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बोले ना, दैट इज अ पीक पॉइंट। अभी बीच में संदीप महेश्वरी ने भी एक के वीडियो में सेम चीज बोली, और ये मैं भी और नीरज को भी हर बार हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं। मुझे भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइक गाइडेंस के लिए पूछता है, मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि जस्ट ट्राई टू गिव जस्ट 2 years ऑफ प्रिपरेशन। आप उसके बाद जॉब करते करते एग्जाम दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लेस देन 1%। लेस देन 1% राइट, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत राइट? बहुत कम है, 0.0001। ये मतलब हाँ, ये एक्चुअली सही है, 0.01 सही है आईआईटी के लिए। मुझे लोगों को डराना नहीं है उसको 0.01% बोल के, राइट। पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थोड़ा सो रियलिटी जानना चाहिए लोगों में। रियलिटी करेक्ट, जाननी चाहिए, मुझे वही रियलिटी पसंद आया। जानना। क्योंकि आपने भी योगेश एग्जाम दी, राइट? पर आपको पता चल गया है कि आई थिंक ये मेरे लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। उससे अच्छा मैं एक इजी वे में जाता हूँ, उसमें पैसे भी हम्म अच्छे, लाइफ अच्छी है, तो मैं चला जाता हूँ। तो ये भी चीजें करनी चाहिए लोगों ने, नहीं तो लोग बहुत ईगो में चले जाते हैं। अब एक है मेरे पहचान का, वो हम्म लास्ट 5-6 ईयर से एमपीएससी ही कर रहा था, उसकी एग्जाम नहीं निकली, अब इज क्लोज टू 30। हम्म अब उसका ऐसा हो रहा है ना, उसके पास जॉब है, जॉब नहीं है तो हम्म शादी नहीं है, तो एंटायर लाइफ इज गेटिंग स्टॉप, राइट? और जैसे फिर राइट। योगेश ने बोला, लोग डिप्रेस हो जाते हैं फिर, कि और फिर अपने दोस्तों को करेक्ट। देखते हैं वो तो आगे चले गए, फिर लोग नसीब को कोसते हैं। नसीब को हाँ। कोसना इज नॉट द राइट थिंग, मतलब ये तो सबसे घटिया चीज है। 5 साल अगर आप खुद को हम्म एनालाइज करने में लगा रहे हो, तो मतलब ये तो हाँ, वो बेटर है। उससे भी बड़ा मजाक हो गया, right? वही एक्चुअली लास्ट टाइम भी रोहित ने भी सेम चीजें बताई थी हम्म कि एक चीज पकड़ के मत बैठो, यू हम्म हैव टू मूव ऑन एट सम पॉइंट। ठीक है, नहीं नहीं हो रहा है, राइट। एक्सेप्ट इट,
और दूसरे अपॉर्चुनिटी ट्राई करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। आप कोई रेस में नहीं हो कि भाई वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, है ना। Correct. हर एक बंदे का अलग अलग स्ट्रगल होता है, उसके सिचुएशंस अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, तो वी कांट जस्ट कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स जस्ट बिकॉज उसकी सैलरी ज्यादा है मेरी कम है, ऑन दैट बेसिस। तो ये काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला था। आई थिंक यस, हम लोग क्लोज करेंगे। सो एक्चुअली हमारा वीकेंड तो बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट हुआ। काफी अच्छा। थैंक्स टू योगेश फॉर दैट। Yeah, thanks मतलब तुषार, क्योंकि thank you सुबह ही नीरज। जब हम लोग ऐसे कुछ पॉजिटिव लोग जिनका पर्सपेक्टिव अलग है उनसे बात करते राइट, तो हमारा भी पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है लाइफ को देखने का। सो आई गेस व्यूवर्स को भी सेम चीज लगेगी, आई एम वेरी मच श्योर। और योगेश को हम लोग आगे भी लाएंगे कुछ और टेक्निकल डिस्कशन के लिए। सो Yeah, for sure. आपने बहुत अपने स्कूल में से Busy schedule. आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। एक्चुअली जो स्कोप के बारे में आपने बताया, मैं स्टिल उसमें ही अटका हुआ अभी तक बाहर निकल Okay, नहीं पा it's रहा okay. Yeah, okay. तो थैंक यू सो मच योगेश, इतनी सारी वैल्यूबल बातें करने के लिए। Sure, Neeraj. Thanks for you both for inviting me. yeah, थैंक thanks Yogesh, thanks Neeraj.